ایک نیک آدمی کی بیوی کو زنا کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پیسے لے کر زنا کرتی تھی۔ جب اس کے شوہر نے اس سے کام کرنے سے منع کیا تو وہ نہ مانی، اور پھر ایک دن وہ حاملہ ہو گئی، اور جب اس نے بچے کو جنم دیا تو گھر والوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ بچہ نہیں بلکہ وہ گھر دیکھنے میں تو بہت صاف ستھرا اور کسی نیک بندے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ معلوم ہوتا تھا، مگر اس میں جو گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اس گھر میں آنے جانے والوں کے۔ اس گھر کے اندر رہنے والے اور جو لوگ اس گھر میں جاتے تھے وہ اس گھر کی حقیقت سے واقف تھے کہ وہ گھر کتنا پاکیزہ تھا اور وہاں کیسے لوگ رہتے تھے۔ رات کے کسی پہر جب نیک آدمی کی آنکھ کھلی تو اسے دوسرے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر وہ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس نے جا کر کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو صدمے سے دنگ ہو کر چپ رہ گیا۔ اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دم اسے چکر آیا تھا اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے کھڑکی کی بیرونی پٹ کا سہارا لیا، جس سے اچھا خاصا شور پیدا ہوا، مگر کمرے میں موجود نفوس اپنے گھٹیا فعل میں اتنی بری طرح مصروف تھے کہ کھڑکی میں پیدا ہونے والا یہ شور بھی نہ سن سکے۔ اندر کمرے میں اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ جس کام میں مصروف تھی، اسے اسلام کی نظر میں زنا کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ حرام فعل ہے، اور اسے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس فعل کو سر انجام دینے والوں کو سنگسار کر دینے کی سزا کا حکم دیا ہے۔ نیک آدمی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اس کی بیوی نے جو کہ گھنونا کھیل اس کے ساتھ کھیلا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ صدمہ اس کے لیے جان لیوا تھا۔ کس قدر نیکی اور بھلائی کے کام کرتا تھا، پورے محلے میں نیک آدمی کے نام سے مشہور تھا، اگر اس کی بیوی جو کل کھلا رہی تھی، اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تو اس کی کتنی زیادہ بدنامی ہوتی، یہ اس کی بیوی نے سوچا نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ جا کر اپنی بیوی کو قتل کر دے اور ساتھ ہی اس آدمی کو بھی مار دے جو اتنی رات کو گھر کے مالک کے علم میں لائے بغیر اس کے گھر میں موجود تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا جیسے گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا، مگر اپنا بھرم قائم رکھنا بھی ضروری تھا اور اپنی بیوی کا پردہ بھی بننا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا جاتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کے عیب لوگوں کو بتاتے پھرے تو یہ اپنے آپ کو سب کے سامنے بے لباس کرنے والی بات ہو جاتی ہے، اس لیے نیک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ چپ میں عافیت جانی۔ اپنے گھر میں اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر لینے کے بعد پیار سے، ڈانٹ سے، مار کر، لڑ جھگڑ کر، ہر طریقے سے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا، مگر وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نیک آدمی طلاق جیسے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کیونکہ اس نے نیک آدمی کی عزت کو سنبھال کر نہیں رکھا تھا۔ اس کی نیک نامی پر ایک بڑا داغ چھوڑ دیا تھا، جسے وہ شاید ساری زندگی دھوتا تو بھی مٹ نہ پاتا۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ نیک آدمی کے گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی جا رہا تھا۔ پہلے محلے والوں نے کبھی بھی اس بارے میں دھیان نہیں دیا تھا، مگر جب سے ایک بدکار شخص کو اس کے گھر میں جاتے دیکھا گیا تھا تب سے محلے والے اس گھر کی خبر گیری رکھنے لگے تھے، کیونکہ یہ ان کے محسن کا گھر تھا۔ وہ بہت نیک آدمی تھا اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، مگر کبھی کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، اور اب اتنے لوگوں کا اس گھر میں آنا محلے والوں کو چونکانے کا سبب بن رہا تھا۔ محلے والوں نے اس گھر کی خبر گیری کرنا شروع کی تو جو انکشاف ان پر ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے نیک اور زاہد شخص کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش یا شاید عذاب فرما دیا ہے۔ زمانے کا ایک بدکار ترین شخص جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں سے گزرنے والے وہ محلے کے آدمی نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نیک اور زاہد آدمی کے گھر میں بدکار شخص داخل ہو سکتا ہے، جو شرابی، جواری ہونے کے ساتھ ساتھ زناکار بھی مشہور تھا۔ انہیں معاملہ کچھ
गड़बड़ लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो जाकर दूसरे गांव वालों को इस बात के बारे में बताता है। हो सकता है उस नेक आदमी के घर में कोई फितना बर्पा किया जा रहा हो। नेक आदमी सबका खैरख्वाह था, सबके साथ भला करता था, हर एक के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आता था, इसलिए मोहल्ले वाले उसके बहुत कदरदान थे। मगर अफसोस कि उस नेक आदमी की अपनी ही बीवी ने उसकी कदर नहीं की थी। इस नेक आदमी की बीवी को ज़िना करने का बहुत शौक था। वो रोज़ रोज़ अमीर आदमियों को अपने घर बुलाते थे और पैसे लेकर ज़िना करती थी। पहले तो उस नेक आदमी को इस बारे में कुछ खबर ही नहीं थी, मगर जब उसे पता चला तो उसने हर तरीके से अपनी बीवी को उस काम से मना करने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। उसे मालूम नहीं था कि उस काम का अंजाम कितना बुरा है, वो अपने लिए कौन सी तबाही खरीद रही है। नेक आदमी काम के लिए किसी दूर दराज के सफ़र पर गया था, जहाँ से वापस आने में उसे हफ्ता भी लग सकता था, और उसकी बीवी को हर किस्म की छुट्टी मिल गई थी। वो अपने शौहर के इतने दिनों के लिए दूर जाने पर उदास होने की बजाय खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसे मुकम्मल आज़ादी थी। वो जिस तरह चाहती उसी तरह घर में रह सकती थी, और उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। वो अपनी हवस के खेल में पूरी तरह से मगन थी। उसे खुदा का कोई खौफ नहीं रहा था। अजीब कुदरत का खेल था। नेक शख्स की सोहबत में रहने के बावजूद भी वो बुराई की तरफ माइल थी। उसने बुराई को छोड़ने का कोई भी फैसला नहीं किया था, मगर अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर वो अपनी बुराई पर कायम थी तो अल्लाह ताला ने तो दिलों के हाल बदलने की सलाहियत अपने पास ही रखी है, और बेशक हर चीज़ की कुदरत अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी तराश कर देते हैं, मगर वक्त आने पर खींच भी लेते हैं, और जालिम ऐसे गिरता है कि फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत उठा नहीं सकती। औरत भी अपने इस गुनाह में मसरूफ़ थी। उस नेक आदमी ने उसे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया, मगर फिर वो हामला हो गई। हमल के दौरान तलाक देना जायज़ नहीं, और नेक आदमी को लगा कि शायद बच्चा ज़िंदगी में आ जाने की वजह से वो सुधर जाए, इसीलिए उसने उस औरत को तलाक ना दी। मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो हमाद बहुत नेक आदमी था। वो मोहल्ले का सबसे मशहूर लड़का था, हाफिज़ कुरान था। उसे दीन अल्लाह हासिल करने का बहुत शौक़ था, और उसने दुनियावी तालीम को छोड़कर दीनी अलूम हासिल किए थे, और फिर अल्लाह ताला ने उसे उसकी मेहनत का फल दिया, और वो इमाम मस्जिद मुकर्रर हो गया। वो इस कदर नेक और पारसा था कि उसने कभी नज़र उठाकर किसी औरत की तरफ नहीं देखा था। पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ़ करता था और उसे पसंद करता था। ढूंढने से भी उसमें कोई खामी नज़र नहीं आती थी। बड़ों का अदब करने वाला बच्चा था। सारे मोहल्ले का लाडला हमाद खूबसूरत नौजवान में बदल गया। किसी को पता भी ना चला। अल्लाह ताला ने उसे हुस्ने सीरत के साथ साथ हुस्ने सूरत से भी नवाजा था। वो इतना खूबसूरत था कि हर देखने वाली आँख में उसके लिए सताइश होती थी। उसने अपनी जवानी बहुत साफ सुथरी गुजारी थी, और फिर उसका निकाह एक खूबसूरत लड़की को चुनकर उसके साथ तय कर दिया गया। हमाद ने कभी भी अल्लाह ताला से लड़की के बारे में कोई ख़ास दुआएं नहीं मांगी थी। वो बस अपने लिए नेक पारसा और सादा लड़की की दुआएं करता था, जो कि ज़िंदगी के हर मोड़, हर दुख सुख में उसके साथ खड़ी हो सके। जिस लड़की के साथ उसका निकाह किया गया था उसका नाम कोमल था। कोमल अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत थी। हमाद के साथ शादी करना गांव की हर लड़की का ख्वाब था, मगर ये सआदत कोमल को मिल गई। कोमल बहुत बड़े और अमीर घराने की बेटी थी। गांव वाले सब कोमल के नसीब पर रश कर रहे थे, जैसे हमाद जैसा खूबसूरत और नेक सीरत लड़का मिला था। मगर न जाने कोमल के चेहरे पर गुस्सा और बेजारी टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हो, मगर साथ ही साथ अपनी नागवारी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। हमाद का निकाह सादगी से अंजाम पाया, और कुछ ही देर बाद कोमल को हमाद के कमरे में भेज दिया गया। हमाद जैसे खूबसूरत नौजवान को देखकर कोमल अपनी नापसंदीदगी और हमाद की गरीबी सब कुछ भूल गई थी। कोमल किसी अमीर घर में शादी करना चाहती थी, मगर कोमल के बाप को हमाद से ज़्यादा बेहतरीन इंसान पूरे गांव में नहीं कोई लगता था। कोमल उस शादी से खुश नहीं थी, मगर हमाद को देखते ही वो सब कुछ भूल गई थी। हमाद इस कदर खूबसूरत था कि वो हर लड़की की तमन्ना हो सकता था। कोमल भी हमाद की
संगत में अपनी तमाम अधूरी ख्वाहिशात को भूल गई थी और उसने कुछ वक्त हंसी खुशी हमाद के साथ गुजार लिया। हमाद का रवैया भी कोमल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो कोमल को अपनी हमसफ़र के रूप में पाकर खुद भी बहुत खुश था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। उसने कभी भी कोमल को ज़रा सा डांटा भी नहीं था। अगर कोमल कोई गलती कर देती तो वो खुले दिल से उसे माफ़ कर देता। अगर कोमल से कोई नुकसान हो जाता तो फिर भी कुछ नहीं कहता था। कोमल भी खुश थी, मगर फिर से उसे दुनिया की तलब होने लगी थी। वो रुपया, पैसा और दौलत की फरावानी चाहती थी, मगर हमाद उसे ये सब फराहम करने से कासिर था। वो सादा ज़िंदगी गुजारना चाहता था। रुपये पैसे की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, मगर कोमल को हमाद के घर में गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बड़े बाप की बेटी थी, उसके शौक़ भी बड़े थे, जो कि हमाद चाहते हुए भी पूरे नहीं कर पा रहा था, और कोमल उस सब से तंग आ गई थी। वो किसी भी तरीके से हमाद से जान छुड़वा लेना चाहती थी, मगर उसके बाप ने उसे वाज़ेह अल्फाज में धमकी दी थी कि अगर वो हमाद का घर छोड़कर उसके घर में आना चाहेगी तो उसे उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता राजी खुशी हमाद के साथ अपने मायके में जितना चाहे आए जाए, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अपने माँ बाप की इस किस्म की धमकी के बाद कोमल के हौसले पस्त हो गए थे, मगर फिर उसने दौलत को पाने और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो रास्ता चुना था वो इंतहाई घटिया और फरेब का रास्ता था। शुरू में तो कोमल ने लड़कों से दोस्ती शुरू की और उनसे तोहफे तोहफ़ लेने लगी। देर तक उनसे फ़ोन पर बातें करती थी। वो ये सब हमाद से चुपके करती थी। हमाद सादा सा बंदा था, उसको अपनी बीवी पर भरोसा था। वो सारा दिन घर से बाहर रहता था, इसलिए उसने कभी भी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, और इस तरह कोमल को शय मिल गई और वो दीदा दिलेर हो गई, और हौले हौले उसके लालच, ख्वाहिश और तलब बढ़ती गई और उसने सारी हदें पार कर दी। उसने लड़कों के साथ ज़िना करना शुरू कर दिया था। फिर उसका ये शौक़ ही बन गया। वो बहुत सारे लड़कों के साथ ज़िना करती थी और उनसे पैसे भी लेती थी। उसे गैर लड़कों के साथ रात गुजारने के बहुत सारे पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करती थी, क्योंकि वो हमाद की आदतों से तंग आ गई थी। हमाद हमेशा उसे कफ़ायत शारी का दर्स देता था और चादर देखकर पाँव फैलाने वाली बात पर यकीन रखता था। कोमल को इन बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। वो रात को हमाद को नींद की गोलियां दे देती थी। नींद की गोलियां खाने के बाद हमाद को किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता था। वो सुबह ही नमाज के वक्त बड़ी मुश्किल से जागता था और कोमल अपने घर में लड़कों को बुला लेती थी, उसके साथ ज़िना करते थे और उसे पैसे देकर हमाद के जागने से पहले चले जाते थे। गांव वाले जानते थे कि हमाद बहुत नेक और शरीफ लड़का है। उन्होंने कभी भी इस घर के बारे में कोई खबर नहीं रखी थी। आंखें बंद करके वो हमाद पर एतबार करते थे, इसलिए उसके घर की मामूली सरगर्मी के बारे में भी उन्होंने नज़र रखने का नहीं सोचा था। मगर एक रात एक इंतहाई बदकार शख्स को हमाद के घर से निकलकर जाते हुए एक मोहल्लेदार ने देखा, तो उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी हो गई कि वो हमाद तक इस बात की खबर पहुंचा दे। हमाद दूर दराज के एक सफ़र पर गया था। वो तबलीगी जमात के साथ काम करता था और दूर दराज के इलाकों में भी अपना तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए चला जाता था। अब भी हमाद की गैर मौजूदगी में इस तरह एक गुनाहगार आदमी का हमाद के घर से निकलकर जाते हुए देखना उसको हैरत में डाल गया था। उसने फ़ौरन गांव में बात बता दी थी और गांव वाले अब इस घर की खबरगिरी करने लगे थे और हमाद के आते ही उसे अपने उस घर में होने वाले मामूली बातों के बारे में सब कुछ बता दिया था, ताकि वो जल्द से जल्द कोई नतीजा तलाश कर सके। हमाद ने जब उस बारे में बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन न आया। उसने घर आकर कोमल से पूछा तो वो साफ मुकर गई और उसने किसी भी बात को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। हमाद के लिए अब मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। गांव का एक आदमी जिसने पहले कभी इस बारे में कोई बात नहीं की थी, अचानक कोमल के बारे में इस किस्म की बात कर रहा था, तो हमाद के दिल में शक पैदा हो रहा था, क्योंकि हमाद जानता था कि उसके मोहल्ले के सब लोग बहुत अच्छे और शरीफ थे। आज तक उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, मगर अब मोहल्ले वालों ने हमाद को कहा कि तुम होशियारी करो, अपने घर पर नज़र रखो, तो तुम्हारे घर में कुछ गलत सरगर्मियाँ हो रही हैं। अक्सर रातों को तुम्हारे घर पर मर्दों को आते जाते देखा गया है, मगर हम लोगों ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि पहले हम बात की तह तक पहुंचना चाहते थे। तुम बहुत शरीफ और अच्छे आदमी हो, सारे मोहल्ले में तुम्हारी अच्छी शोहरत है,
इसी वजह से हमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम तुमसे ये बात कर सकें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब तुम्हें खुद ही इस बात का पता लगाना है कि आधी रात को क्यों तुम्हारे घर गैर मर्द आते जाते हैं। यूँ तो नहीं ना कोई किसी के घर दंदनाता हुआ चला आता जब तक घर वाले किसी को अंदर ना बुलाएं। कोई किसी के घर पे कदम नहीं रख सकता। यह सुनकर हमाद बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे मालूम था ये लोग बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ज़रूर उन लोगों ने कुछ देखा है तभी तो बोल रहे हैं। राई होती है तो पहाड़ बनता है ना। और वो इतने सालों से उस मोहल्ले में रह रहा था। वो जानता था कि उस मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर कोई ऐसी बात देखते हैं तो एक दूसरे को आगाह कर देते हैं। अब हमाद को लग रहा था कि उसने शायद ज़्यादा ही कोमल की तरफ से गफलत बरत ली है, उस पर ज़्यादा ही भरोसा करने लगा है। अब उसके दिल में शक बैठ गया था। उसने सोच लिया था कि मैं सारी हकीकत जान कर रहूँगा। उसे अपना रोज़ रोज़ रात को जल्द सोना और सुबह ही जागना भी खटक रहा था। वो पहले तहज्जुद की नमाज भी रात को ही उठकर अदा किया करता था, मगर अब काफ़ी अरसे से ये उसका मामूल नहीं था। शायद ये शादी के बाद से ही हो रहा था, मगर उसने तवज्जो नहीं दी। अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद उसे कोई नशावर चीज़ दी जाती है, इसलिए उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता। उसके तहज्जुद की नमाज भी छूट गई, मतलब ये सब कोमल कर रही थी। अब उसने मज़ीद इंतज़ार नहीं किया, कोमल को जाकर पकड़ लिया और उसे सब बता दिया कि तुम रातों को मर्दों को घर पर बुलाती हो। कोमल बड़बड़ा गई और अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोला कि मोहल्ले वाले हमसे जलते हैं, उन लोगों की मुझ पर बुरी नज़र थी। जब मैंने उन्हें लिफ्ट नहीं करवाई तो ये लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और कोई वक्त होता तो शायद हमाद कोमल की बात का यकीन कर लेता, मगर आज उसने सब सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी। उसने कोमल को बताया कि मैंने तुम्हें खुद गुनाह करते देखा है। हमाद ने अपनी बीवी को बहुत समझाया, मगर अब तो वो खुल्लम खुल्ला वो हरकतें कर रही थी जिन्हें पहले छुप छुपा कर करती थी। हमाद उसकी बात से बहुत ज़्यादा बेजार आ गया था। बाद में उसे तलाक देनी चाहिए। तब कोमल ने उसे कहा कि तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर हमाद भी चुप हो गया और उसने सोचा कि शायद बच्चा होने के बाद कोमल सुधर जाए और अपनी इस किस्म की हरकतें बंद कर दे, मगर यह हमाद की भूल थी। कोमल डरने वालों में से नहीं थी। अक्सर हमाद सोचता था कि मालूम नहीं ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, अगर फिर सब अल्लाह ताला पर छोड़कर आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगा। हमाद कोमल की हरकतों से सख्त नाला था। अब उसे जल्दी से इंतज़ार था बच्चे का, मगर उसे मालूम नहीं था कि उस बच्चे की सूरत में उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले थे और उनकी आजमाइश और बढ़ने वाली थी। कोमल ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे को लेकर सब घर वालों की चीखें निकल गईं और सब एकदम से इधर उधर भागने लगे। ये देखकर कोमल हैरान हो गई, मगर जब उसने बच्चे की तरफ देखा तो उसकी भी चीखें निकल गईं। वो बच्चा इंतहाई बदसूरत और बिगड़ी हुई शक्ल का था, जिसके नैन नक्श सही से बने हुए नहीं थे और उसके जिस्म पर जगह जगह कट के निशान थे और जगह जगह खून के धब्बे बने हुए थे। वो देखने में इस कदर भयानक लग रहा था कि सबकी चीखें निकल रही थीं। जब हमाद ने सबको चीखते देखा तो अंदर आ गया और बच्चे की हालत देखकर उसने भी अपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो बच्चा ऐसे बना हुआ था कि किसी को उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर जो एक नज़र उस पर डाल रहा था तो दोबारा दूसरी नज़र नहीं डालता था। हमाद उस बच्चे को देखकर बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ये उसकी बीवी के गुनाह का नतीजा है, जिसने सबसे ज़ना करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि उसे उसकी सज़ा इस दुनिया में मिल सकती है। हालांकि हमाद को मालूम नहीं था कि ये बच्चा किसका है। कोमल हमाद को बोल रही थी कि तुम्हारा बच्चा है। कोमल ने उस पर दोबारा नज़र डालनी गवारा नहीं की। वो अपने बच्चे से नफ़रत करने लगी थी। उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती थी, उसका ख्याल भी नहीं रखती थी। हालांकि यही बच्चा कोमल की गुनाहों की निशानी था। वो बच्चा पैदा होते ही मर गया था। अगर कोमल को उसकी मौत का तो कोई दुख ना था और ना ही कोई परवाह थी। उसे किसी से कोई गर्ज नहीं था। वो बहुत खुदगर्ज किस्म की लड़की थी। हमाद ने कोमल को तलाक दी थी और उसे फ़ौरन अपने घर से निकाल दिया था। हमाद के घर से निकाले जाने के बाद उसके घर वालों ने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि हमाद के घर में कोमल किस किस्म के काम करती थी।
एक शरीफ बंदे को कैसे उसने बदनाम किया था और उसे नशा देकर हर चीज़ से गाफिल कर रखा था। कोमल ये बात भूल गई थी कि वो हम्माद को तो नशा देकर सुलाती है, लेकिन मोहल्ले के दूसरे लोग तो जागते रहते हैं और उनकी आदत है एक दूसरे के घरों की खबर रखते हैं। हम्माद देखने में अच्छा और शरीफ इंसान था। वो कोमल के साथ ज़्यादा बुरा नहीं पेश आ सकता था क्योंकि उसकी नेचर ही ये नहीं थी। इसलिए उसने चुपचाप कोमल को तलाक दे दी थी और उसे अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि अब कोमल के पेट में बच्चा भी नहीं रहा था और उस बच्चे को देखकर तो हम्माद बिल्कुल ही मायूस हो गया था। हम्माद बहुत दुखी रहता था। वो अक्सर अपने रब से दुआ करता था, कहता था, ऐ मेरे रब, तूने खुद फरमाया कि मोमिन मर्दों के लिए मोमिन औरतें हैं, फिर मुझे क्यों एक ऐसी औरत का साथ मिला जिसने मेरी इज्जत की परवाह नहीं की और मेरे ही घर में गुनाह की मुरतकब हुई। कोमल ने एक बूढ़े इंसान से शादी कर ली थी, मगर आज भी उसकी हरकतें वैसे की वैसे थीं। मगर हम्माद ने एक बहुत ही शरीफ और नेक लड़की से शादी की थी जिसने उसके घर को जन्नत बना दिया था। हम्माद को अब घर में सुकून मिलता था। कोमल जैसे लोग जब तक खुद ठोकर ना खाएं तब तक नहीं संभलते, मगर अब कोमल को अंदाज़ा हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी शादी को निभा रही थी, क्योंकि शायद उसके पास अब दूसरा कोई सहारा नहीं था।